students, welcome again. I am Mr. Mohammad Shahbaz Alam, Assistant Professor from ABES Engineering College, Ghaziabad. In the previous lecture, lecture number 19 and 20, lecture number 20, I have discussed the working of JFET, especially N channel JFET, junction field effect transistor, that is unipolar device and voltage control device. Now, in this lecture, lecture number 21, unit number 3, I am going to discuss the P channel JFET, application of JFET as a VVR and constant current source. I will discuss, and also I will discuss in this lecture the JFET parameters, that is transconductance, drain resistance and amplification factor, or you can say voltage gain. Like N channel JFET, the construction of P channel JFET is there, just we have to interchange the P type and N type semiconductor here. Now, since channel is made up of P type, that is why it is called P channel JFET. This is the basically P channel, and this is drain and this is source. This is the symbol of P channel JFET. You can say that the direction of arrow is outward. This means, since this is the channel and channel is made up of P type and gate is made up of N type, and we know that conventionally the direction of arrow is always from P type to N type, in case of diode also, and in case of BJT also, and in case of FETs and MOSFET, always the direction of arrow is taken from P type to N type. So, this is the conventional method to indicate the direction of arrow. Since arrow is outward, it indicates that the channel is made up of N type, P type, and gate is made up of N type. So, we can easily identify that what type of JFET is this. Okay guys, तो जस्ट आप सिंबल देख के ही आप पहचान सकते हो कि कौन से डायोड हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी चैनल है या एन चैनल है। एन चैनल के लिए एरो अंदर की तरफ होगा, चैनल की तरफ, और पी चैनल के लिए जो है एरो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड। ओके गाइस, नाउ वर्किंग ऑफ पी चैनल JFET, like working of N channel JFET, already we have discussed, that is there were 3 cases when VGS is 0, when VGS is negative, and when VGS is pinch off voltage. This means there are also 3 cases. When VGS is 0, what will happen? If VGS is 0, this means VGS is 0, this means gate and source is short circuited. Then what will happen? If we will change the VDD, if we will change the VDD, then what will happen here? Basically, since this is the P channel, so this voltage will be the negative and this voltage will be the positive. And if we will change the voltage, supply voltage, then the conduction of holes will increase. This means the positive plate of the battery will supply the holes to the P channel, and the holes will be collected by the negative plate of the supply battery VDD. This means the circulation of hole will be in this direction. Okay guys, the circulation of holes will be in this direction, clockwise direction. If we are increasing this battery, then the conduction of holes will also increase and a current will also increase, and that current is called drain current or source current, since source current and drain current are equal. And a non-uniform depletion layer will form here, and you can say the non-uniform channel will be established. Why non-uniform channel will establish? As already I have discussed in case of N channel JFET, that suppose if supply voltage is 10 volt, then what will happen guys?
here it is 0 and it is minus 10 volt, it is minus 10 volt. Suppose at the just mid this is minus 5 volt, okay guys, this is minus 8 volt and this is minus 10 volt and this is suppose minus 3 volt. Then what will happen here? The n type semiconductor is at 0 voltage and the p type semiconductor at mid is minus 5 volt. This means at the mid region the reverse voltage between the gate and channel is 5 volt. This means and the reverse voltage towards the drain increases and the reverse voltage towards the source decreases. This means the penetration of reverse bias will increase towards the drain. This means the width of the depletion layer will increase towards the drain and decreases towards the source, so that the non-uniform depletion layer will exist, and due to non-uniform depletion layer the channel width will also be not uniform. Okay guys, as I already discussed that at VGS is equal to 0, when we will increase the supply voltage, the drain current will also increase and it increases to a saturated level, or you can say constant level. That current is called IDSS, that is drain to source current at saturation condition. This is the largest possible current in case of JFET. Okay guys. Now case 2, when gate voltage is, this is n type gate and this is n type gate and this is p substrate. Okay guys, and here I will take the gate voltage is positive, then what will happen, and this is the supply voltage, this is the supply voltage. You can take here resistance also, no problem, and supply voltage basically this is minus and this is plus. Then what will happen here? If we will increase the positive gate voltage, here positive gate voltage, what will happen? Earlier it was at the 5 volt, now suppose this is plus 1 volt. Then what does mean this? Now the channel and the gate become reverse bias by a voltage of 6 volt. पहले 5 वोल्ट से रिवर्स बाइस था, अब 6 वोल्ट से रिवर्स हो गया। यानी जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज पॉजिटिव गेट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज बढ़ता जाएगा और रिवर्स वोल्टेज बढ़ने की वजह से क्या होगा बालक, यहाँ पे जो चैनल का जो विड्थ है वो घटता जाएगा और चैनल की विड्थ घटने की वजह से चैनल का रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी घट जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, करेंट घट जाएगा। यानी अब करेंट IDSS से घटना धीरे धीरे शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज यानी कि गेट वोल्टेज आप बढ़ाते हो, अगर सपोज सप्लाई वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखा है, सप्लाई वोल्टेज VDD आपने क्या रखा है, कांस्टेंट, लेकिन अब हम गेट को वेरी कर रहे हैं, पॉजिटिव गेट वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज वेरी होने की वजह से रिवर्स वोल्टेज फर्दर बढ़ जाएगा और डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाएगा और जो चैनल है चैनल का विड्थ घट जाएगा, जिससे चैनल की रेजिस्टिविटी यानी कंडक्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी घट जाएगा और ड्रेन करंट धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा। एज वी आर इंक्रीजिंग द गेट वोल्टेज, दिस मीन्स अगर हमने गेट वोल्टेज इंक्रीज किया तो कारण क्या होगा, यहाँ डिप्लीशन लेयर जो होगा, डिप्लीशन लेयर वो आपका जो है बढ़ जाएगा और डिप्लीशन लेयर बढ़ने की वजह से क्या होगा बालक, कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल, कंडक्टिविटी ऑफ चैनल आपका डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टिविटी ऑफ चैनल डिक्रीज होने की वजह से आपका ड्रेन करंट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बालक, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब आप गेट वोल्टेज बढ़ाते हुए आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो, जब करंट घटते घटते जीरो हो जाता है तो उस गेट वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज यानी VGS ऑफ कहते हैं। ये वही पिंच ऑफ वोल्टेज है जिस उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितने वोल्टेज पे यानी VSD वोल्टेज पे, आपका VSD वोल्टेज सपोज हमने बढ़ाया था तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट किया, सपोज ये वैल्यू आपका जो है इसको भी हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, लेकिन ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ये VSD का है, सपोज ये 4 वोल्ट है
और अगर इतने ही 4 वोल्ट अगर आप यहाँ पे गेट वोल्टेज पे दे दोगे तो आपका करंट घटते घटते 0 हो जाएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के पोलैरिटी वाइज उल्टा होगा। यहाँ VDS नेगेटिव होगा और इसलिए हमने VSD बोला है, और यहाँ पे VGS क्या होगा बालक, पॉजिटिव होगा। तो इसको पिंच ऑफ वोल्टेज भी कहा जाता है, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज गेट की वो वैल्यू है जिस पे ड्रेन करंट 0 हो जाता है, और पिंच ऑफ वोल्टेज ड्रेन सोर्स की वो वैल्यू है जिस पे करंट सेचुरेट हो जाता है, जिस पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, यानी IDSS हो जाता है। यानी एक पिंच ऑफ वैल्यू पे करंट की वैल्यू IDSS हो जाता है और वो पिंच ऑफ वोल्टेज VDS की होती है, और एक पिंच ऑफ वोल्टेज होती है गेट टू सोर्स वोल्टेज की जिस पे करंट 0 हो जाता है। ठीक है बालक, तो नॉर्मली क्या हुआ, इसका 3 केस हुआ। व्हेन VGS इज 0, VGS 0 होगा, सप्लाई वोल्टेज दोगे तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, उस समय करंट की वैल्यू IDSS होगा। जब VGS की वैल्यू आप पॉजिटिव दोगे पी चैनल में तो करंट घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और जब VGS की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर दे दोगे तो करंट घटते हुए 0 हो जाएगा। यानी इस टाइम में हम कह सकते हैं कि डिवाइस ऑफ हो चुका है। और इस तरह से आपका जो है जो ड्रेन करंट है और गेट वोल्टेज है, इसके बीच का जो रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज गिवन बाय द विलियम सोकलेज इक्वेशन। सोकले इक्वेशन से हम देते हैं, और सोकले इक्वेशन क्या होता है वो हम आगे आपको यहीं पे हम आपको डिस्कस कर देते हैं। तो सोकले इक्वेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, क्या है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। ठीक है बालक, और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि ये पी चैनल है तो गेट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा बालक, पॉजिटिव होगा, और पिंच ऑफ वोल्टेज की भी वैल्यू बालक क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये माइनस साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। और इससे क्या पता चलता है कि ड्रेन करंट इज द फंक्शन ऑफ गेट वोल्टेज, ड्रेन करंट इज द फंक्शन ऑफ गेट वोल्टेज, इनपुट गेट वोल्टेज। इसीलिए इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं बालक, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। जबकि ऑन द अदर हैंड BJT was the current control device, because in case of BJT the collector current, that is output current, was the function of input current. That is why the BJT is known as current control device. On the other hand, FETs are the voltage control device. Okay guys, so now I have already explained the working, this working I have already working. Now I am going to draw the VI characteristics of P channel JFET. All of us know that whenever we need to draw the VI characteristics, so first of all we need to some observation table, we need to some data, हमें data चाहिए, then only we are able to draw the characteristics. Now in case of FET there are two types of characteristics. One characteristics is the transfer characteristics and another one is the ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप लोग गलती से भी यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स BJT में होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में होता है, क्योंकि वहाँ पे इनपुट करंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि गेट रिवर्स बाइस होता है और गेट रिवर्स बाइस होने की वजह से हमने गेट में कोई करंट नहीं माना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने गेट करंट कोई करंट नहीं माना, यहाँ पे गेट करंट की वैल्यू 0 होता है। तो जब गेट करंट यानी इनपुट करंट है ही नहीं तो इसमें कोई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है। हाँ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के जगह पे हम इसको एक अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन इन बिटवीन द आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। दैट इज व्हाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स और दिस कर्व इज कॉल्ड ट्रांसफर कर्व और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल ऑफ अस नो दैट, आप लोग पढ़े होंगे नेटवर्क में या कई सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो, कि जब भी whenever we write a relation, we write a function between output and input parameter, that function or that equation is known as transfer function और transfer equation। उसी तरह से जब भी कोई कर्व या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट पैरामीटर और इनपुट पैरामीटर के बीच में ड्रॉ करते हैं तो उसे ट्रांसफर कर्व या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जस्ट एक वर्ड ट्रांसफर यूज कर लेते हैं। क्यों ट्रांसफर? क्योंकि वी आर ट्रांसफरिंग द पोर्ट, इनपुट पोर्ट टू आउटपुट पोर्ट, यानी आउटपुट पोर्ट और इनपुट पोर्ट के बीच का रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एक होगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होगा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा ड्रेन करंट
और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा ड्रेन करंट और इनपुट गेट वोल्टेज के बीच में। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सर्किट बनाया जिसमें हम 3 मीटर्स लगाए हैं। 1 मीटर लगाए हैं इनपुट गेट वोल्टेज को मेजर करने के लिए, यानी ये गेट और ग्राउंड यानी सोर्स के बीच का वोल्टेज मेजर करेगा। इस वोल्टेज को आप VGS कह सकते हैं। उसके बाद 1 मीटर हमने कनेक्ट किया है सीरीज में मिली एम्पियर मीटर, इससे आप ड्रेन करंट मेजर कर सकते हो कि कितनी ड्रेन करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद एक ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाए हैं जो कि आपको VDS की वैल्यू नेगेटिव में बताएगा या VSD की वैल्यू पॉजिटिव में बताएगा। यहाँ आप पोलैरिटी का आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ड्रेन में नेगेटिव सप्लाई दिया गया और सोर्स में पॉजिटिव सप्लाई दिया गया, और सोर्स चूंकि ये पे ग्राउंडेड रहता है। ठीक है बालक, तो आपको क्या करना है कि जब आपको क्या करना है कि एक बार आप क्या करेंगे कि यहाँ पे VDS की वैल्यू चेंज करेंगे, और VDS की वैल्यू चेंज करने के बाद आपको अलग अलग मीटर से रीडिंग लेना होगा। छोटे छोटे अंतराल में हमने यहाँ की रीडिंग ले लिया। एक बार हमने VGS की वैल्यू 0 कर दिया सबसे पहले। तो VGS की वैल्यू जब 0 करेंगे तो जब आप यहाँ से सप्लाई वोल्टेज चेंज करोगे और छोटे छोटे अंतराल में आप VDS और ID की वैल्यू मेजर करोगे तो आपको एक टेबल मिलेगा, और मैक्सिमम जो करंट अटेन होगा उस करंट को हम लोग IDSS कहेंगे। ये तो ठीक है, एक कर्व मिलेगा आपको कब, VGS इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है बालक, और अनावश्यक अगर आप VDD सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे जिससे VDS की वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो आप सबको पता है वहां पे डिप्लीशन लेयर बनता है कहां पे, चैनल और गेट के बीच में। तो एक टाइम में ऐसा होगा कि वो आपका जो डिप्लीशन लेयर है वह कोलैप्स हो जाएगा और अचानक चैनल से करंट की वैल्यू फ्लो होना शुरू हो जाएगी और करंट सैचुरेशन के बजाय सडनली करंट इंक्रीज होना शुरू करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट वोल्टेज की वैल्यू -1 वोल्ट ले लेंगे, फिर हम ये रिपीट करेंगे, तो इससे हमें 2 कर्व मिल जाएगा। तो इससे हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है तो बालक आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे VDD कांस्टेंट कर दो। सपोज 10 वोल्ट दे दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया VDD कांस्टेंट कर दिया, और VDS की वैल्यू क्या है बालक, 10 वोल्ट आपने फिक्स कर देना है, और इस बैटरी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से धीरे धीरे वैल्यू हम चेंज करेंगे, है ना, इससे चेंज करेंगे, और हर एक छोटे छोटे अंतराल में इन दोनों मीटर्स की यानी ID वाले मिली एम्पियर मीटर की करंट और VGS की वैल्यू नोट करना है। तो हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे VGS की वैल्यू लिखेंगे बालक वोल्ट में, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ID की वैल्यू लिखेंगे मिली एम्पियर में। तो इस तरह से हमें जो रीडिंग्स आएंगे इससे हम क्या ड्रॉ कर पाएंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ठीक है बालक, सबसे पहले आप देखिए ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, फिर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलेंगे। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो VDS लिया है ये बेसिकली माइनस ऑफ VDS का मोड है। क्या है बालक, माइनस ऑफ VDS का मोड है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेन पे वोल्टेज गया है वो नेगेटिव गया है ना। तो या तो हम VDS को नेगेटिव एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएं, लेकिन हम अगर इस पे दिखा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें -VDS का मोड लिखना चाहिए, या कुछ लोग सिंपल इसको VSD भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बालक, VSD। अब आप यहाँ देख लीजिए कि VGS की वैल्यू हमने 0 लिया है, तो VGS की 0 ले, और स्टार्टिंग में जब हम VSD की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, और करंट यहाँ पे आकर के क्या हो गया बालक, सेचुरेट हो गया, यहाँ पे आके सेचुरेट हो गया। तो इस करंट को हम क्या कहेंगे बालक, IDSS। दिस इज इक्वल टू VGS इज इक्वल टू 0। और फर्दर अगर आप VSD बढ़ाओगे तो अचानक डिप्लीशन लेयर कोलैप्स कर जाएगा और करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा। सपोज ये करंट अभी आप अगर ग्राफ से देखें तो ये लगभग 5.8 मिली एम्पियर के आसपास करंट है, 5.8 मिली एम्पियर के आसपास करंट है। अब हम क्या करेंगे, VGS की वैल्यू बढ़ा दिया यानी 1 वोल्ट कर दिया, तो जैसे ही VGS की वैल्यू 1 वोल्ट करेंगे उसके बाद हम अगर VSD बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में करंट बढ़ेगा और यहाँ पे आके करंट सेचुरेट हो जाएगा। अब जो करंट की वैल्यू हो गई, अब बालक आप देख सकते हो अब ये घट करके 3.9 मिली एम्पियर के आसपास हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग जैसे जैसे पॉजिटिव गेट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम ड्रेन करंट घटता जाएगा, और एक टाइम में ऐसा आएगा कि करंट जब VGS की वैल्यू हम पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर कर देंगे तो हमारा करंट घटते हुए 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये इसको कहते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एज यू सो इन द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन, ये जो आप डार्कन रीजन देख रहे हैं इसको ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक जो करंट आपका सेचुरेट है इसको सेचुरेशन रीजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बालक? सेचुरेशन रीजन। उसके बाद अगर आप ये सब जहां जहां पे करंट सेचुरेट हुआ है अगर इसको कनेक्ट करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा, और इस कर्व के लेफ्ट साइड के रीजन को हम लोग ओमिक रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं बालक? ओमिक रीजन बोलते हैं, ओमिक रीजन। और यहां पे चूंकि करंट डिवाइस ऑफ हो जाता है इसलिए इसको आप कट ऑफ रीजन के नाम से जान सकते हैं। तो जेफेट में टोटल 4 रीजन होता है, ओमिक, सेचुरेशन, ब्रेकडाउन एंड कट ऑफ रीजन। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ बीजेटी देयर वर 3 रीजन्स, कट ऑफ, एक्टिव एंड सेचुरेशन। और फेट में 4 रीजन होता है, ब्रेकडाउन, उसके बाद आपका क्या होता है सेचुरेशन, ओमिक और कट ऑफ रीजन। मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, मैं अलग से आपको इसका जो एप्लीकेशन होता है वीवीआर और क्या बोलते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। अब अगर देखो बालक, अगर आपने गेट वोल्टेज की वैल्यू 0 कर दिया और आप लोग मान लो कि ड्रेन सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट कर दिया, तो इस समय पे जो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा वो करंट मिलेगा आईडीएसएस, यानी। और आईडीएसएस और सेचुरेशन रीजन में देखो तो आपको ये कांस्टेंट करंट मिलेगा। क्या मिलेगा बालक? कांस्टेंट करंट। तो इसीलिए सेचुरेशन रीजन में, यानी जितने ड्यूरेशन के लिए करंट कांस्टेंट रहता है उसको सेचुरेशन रीजन कहते हैं। तो सेचुरेशन रीजन में जेफेट का यूज आप एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह कर सकते हो, कांस्टेंट करंट सोर्स। और ध्यान दीजिए सोर्स कई तरह का, करंट सोर्स 2 तरह का होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये वाला जो करंट सोर्स होगा वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, क्योंकि आईडीएसएस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वो वीजीएस पे डिपेंड करेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये करंट डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह। कोई भी पूछे कि कैसे यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, तो हम लोग जो है सेचुरेशन रीजन में कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज करते हैं। उस तरह से आप देख सकते हो कि इसका एक और यूज है, उसको कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप सबको पता है कि गेट वोल्टेज अगर हम चेंज करते हैं तो चैनल का विड्थ चेंज होता है, यानी चैनल का रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसका मतलब वी कैन वेरी द चैनल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वेरिंग ऑफ गेट वोल्टेज। इसीलिए इस बिहेवियर को या इस एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरफ। तो 2 एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया। तीसरा एप्लीकेशन आप इसको स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप गेट में 0 वोल्टेज दोगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और आप अगर गेट में पिंच ऑफ वोल्टेज दोगे तो 0 करंट फ्लो होगा। यानी आप इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हो, ऑफ कंडीशन में भी कर सकते हो और मैक्सिमम करंट में भी कर सकते हो, इसलिए इसको कहते हैं स्विचिंग बिहेवियर। नाउ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सबको पता है पी चैनल है, गेट वोल्टेज हम पॉजिटिव लेंगे, इधर ड्रेन करंट लेंगे, तो ये आपको कहेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली किसका होता है? ये सोकले इक्वेशन का होता है। सोकले इक्वेशन अगर आप ड्रॉ करोगे, सपोज वीजीएस की वैल्यू अगर आपने 0 ले लिया तो वीजीएस की वैल्यू 0 ले लोगे तो करंट की वैल्यू आपको मिलेगा आईडीएसएस, और वीजीएस की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज लोगे तो करंट की वैल्यू हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपको ये कर्व मिलेगा। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बालक, ये एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग अटेम्प्ट लेना, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि स्केच द ट्रांसफर कर्व डिफाइंड बाय आईडीएसएस इज इक्वल टू 12 मिली एम्पियर, वीपी इज इक्वल टू -6 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली -6 वोल्ट वीपी दिया, इसका मतलब ये एन चैनल जेफेट है, तो इसको एन चैनल के हिसाब से आप लोग इसका जो है कर्व ड्रॉ कर सकते हो। अलग अलग वैल्यू पे आप लोग इसकी वैल्यू निकालो और आप इससे अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बालक, तो ये आपका देख सकते हैं नेगेटिव कर्व है, तो इसका मतलब ये एन चैनल का कर्व ड्रॉ हुआ, ये पी चैनल का नहीं है। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वीपी की वैल्यू -6 वोल्ट दिया हुआ पिंच ऑफ वोल्टेज, और माइनस वोल्टेज किसका होता है? एन चैनल का होता है, और पी चैनल का क्या होता है? पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आपको समझना, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, सोकले इक्वेशन का यूज करना। ठीक है बालक, उसके बाद अब हम चलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट हियर। आईडीएसएस इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर और वीपी इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। बिल्कुल, ये आपका जो है पी चैनल जेफेट है, तो आप लोग सोकले इक्वेशन का यूज करके आप लोग इसको निकाल सकते हो अलग अलग वैल्यू पे। आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर, इसका यूज़ करना, अलग अलग गेट वोल्टेज पे वैल्यू निकाल लो एग्जाम्पल में, और उसको बाद में कर्व को ड्रॉ कर दो, तो यू विल गेट द ट्रांसफर कर्व।
उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ जेफेट है, ये अलग अलग जेफेट का स्पेसिफिकेशंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम 25 वोल्ट होता है, ड्रेन गेट वोल्टेज 25 वोल्ट होता है। ये सब दीज आर द पैरामीटर्स। फॉरवर्ड गेट करंट आपका 10 मिली एम्पियर। दिस इज द specification of JFET. Now JFET parameters, basically there are three JFET parameters. One is the transconductance, and second one is the drain resistance, and third one is the amplification factor. So transconductance is defined mathematically, it is defined as the ratio of change in drain voltage to the change in gate current. The gate voltage, that is transconductance is equal to dID upon dVGS, but at constant VDS. तो इस तरह से इसको ट्रांसकंडक्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है मोह होता है या पर ओम होता है। तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। कहाँ से डिराइव कर सकते हो? सोकले इक्वेशन से। तो सोकले इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे VGS के रेस्पेक्ट में, तो आपको इससे वैल्यू मिल जाएगा, और ये वैल्यू आपको ये मिल जाएगा dID दिस इक्वल टू दिस। तो इससे आपको इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आप ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगा, GM की वैल्यू मिलेगा -2 IDSS अपॉन VP इंटू 1 - VGS अपॉन VP। अगर आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, -2 IDSS अपॉन VP और 1 - VGS अपॉन VP की वैल्यू सोकले इक्वेशन से आप देखो, ये देखो सोकले इक्वेशन से, तो क्या होगा 1 - VGS अपॉन VP √ID अपॉन IDSS हो जाएगा। ठीक है बालक, तो यहाँ पे आप करोगे √ID अपॉन IDSS, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 अपॉन VP √ID डॉट IDSS। तो ये आपका एक और इक्वेशन आ गया, किसका? ट्रांसकंडक्टेंस का। ठीक है बालक, अगर आपको ड्रेन करंट मालूम है, IDSS मालूम है, पिंच ऑफ वोल्टेज मालूम है, गेट वोल्टेज मालूम नहीं भी है, तो आप यहाँ से जो है आप ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। उसी तरह से एक और पैरामीटर होता है ड्रेन रेजिस्टेंस, RD। तो RD इज डिफाइंड एज द dVDS अपॉन dID। ठीक है, यानी चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन ड्रेन करंट। तो ये आप इजीली कहाँ से निकाल सकते हो? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के कोई भी कर्व से आप कोई पॉइंट ले लो, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से तीसरा वैल्यू होता है म्यू इज इक्वल टू डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS। आप चाहो तो डेल्टा ID से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा अपॉन डेल्टा ID, और यहाँ पे डेल्टा ID कर दो और नीचे डेल्टा VGS कर दो। तो इस वैल्यू को क्या बोलोगे? इस वैल्यू को बोलेंगे RD, और इस वैल्यू को क्या बोलोगे? GM, और इसको म्यू कहते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू RD इंटू GM, इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ P type JFET. In the next lecture, I will discuss the MOSFET. Okay guys, thank you. See you again.